money you want to offer. So for me, NRIPT has been one of the that is part of my Devrin or what you call teachers debt, which I can never pay. So NRIPT में पढ़ने के बाद वहाँ हमने क्या सीखा कि लगातार लगातार निरंतर सीखना जो है वो एक प्रक्रिया है, उसको समझने का मौका मिला. तो NRIPT के बाद मैंने दिल्ली में काम किया 1 साल मायर प्रिंटर्स में, और वहाँ पे उन दिनों हमारा सानिध्य रहा संदीप भार्गव और यानी शर्मा और काफ़ी लोगों के साथ, पुराने सीनियर्स के साथ. ज़्यादा मौका नहीं मिला. उसके बाद मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने रॉचेस्टर RIT से बैचलर्स इन प्रिंटिंग जो है वो पूर्ण करी. और इंटरेस्टिंगली मैं अभी नई एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ने का थोड़ा मौका मिला, जिसमें नए विद्यार्थियों को ये मौका दिया जाएगा जब वो कॉलेज में होंगे कि दे कैन पिक एनी सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस. यू कैन बी डूइंग कंप्यूटर साइंस बट यू कैन पिक म्यूजिक एज एडिशनल सब्जेक्ट. तो मुझे वो मौका 1988 में RIT में मिला, जब मैं प्रिंटिंग when I was studying printing, I was fascinated with computers, and I went to my dean and I said, listen, I want to understand more about computer science and information systems. And then this guy told me that, well, you know, your major is printing, but you can take few courses in computer science. That is how I got drifted towards computer science and mathematics. And I earned a degree which has a major in printing and minor in information systems. So this is such a deja vu where I see, you know, current new education policy talking about this, where it allows students to pick subjects of their choice. तो अमेरिका में मैंने प्रिंटिंग RIT में की डिग्री करने के बाद एक फिलाडेल्फिया बेस्ड प्रिंटिंग कंपनी एल्कॉम प्रिंटिंग को ज्वाइन किया. तो वो ट्रेडिशनल प्री प्रेस से वो पहली बार वो DTP में जा रहे थे. तो यू नो I helped Elcom set up complete new modern pre-press and desktop publishing. And I worked for Elcom for 3 years after completing my degree. And I had also gotten green card by then. My daughter was born there. And at that time in 94, I got opportunity from Apple, where Apple was setting up in this region. And they wanted to target publishing and printing industry. And they were looking for people who understood printing as well as computer systems. So in 94, I came back and joined Apple. I worked for Apple for 7 years, and you know, we set up Apple in India and also all neighboring countries. I had opportunity to go to Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, and we set up Apple's distribution channel there also. In 2002, I, with another Apple person who was on the engineering side, we thought of starting a technology startup, and we started a company. That company was later acquired by Cyber. Cyber at that time was $1 billion US organization, headquartered out of Denver, Colorado. And they acquired our company, and because we were the key promoters of the company, they set an agreement. They made us sign an agreement where we had to work for this company for 3 years and grow this company. So by the time I left Cyber, you know, I had to complete that 3 years non-compete period, and we were about 1,500 people. We had engineers, talent from all over the country. We had people who were from IITs, from NITs, etc. And at that, you know, sometimes I used to imagine that, you know, yeah, I have a IIT guys reporting to me, and actually, do they know that, you know, my origin was from NRIPT, Allahabad. So it was very, very humbling experience that, you know, if you just keep doing your stuff, and opportunities will come your way where you can do all kind of different things. So after I completed my non-compete period with Cyber,
I again wanted to be an entrepreneur, and again we started a company in 2012, and that company today, I have two more co-founders, and we continue to grow that company. Uh, we were just touching 100 people. It has now come down a little bit because of our current Corona. timelines, uh, Corona. Corona, and overall business environment. But Yeah, it yeah. has been a very, very interesting journey. And as I indicated in the beginning, that what you learn is in college is to continue to learn, where you see that what all is happening around you, and based on that learning, and you spot opportunities, and based on those opportunities, you try to tap them. I also want to share with you that we had a full circle where I started from printing, publishing, and then I went to software development, uh, and finally I came back to some software pieces which are helping in publishing. To give you example, today we are part of a publishing platform. Uh, this was a company started by Raghav Bahal called Quintype. We are their authorized partners, where you can actually start a newspaper sitting at home, and the Quintype platform gives you whatever you require. So you don't need IT people, you don't need servers, you don't need software. Editors and group of journalists, they can sit in their homes on their laptops, and this platform will actually create a newspaper for them. So today we have more than dozen newspapers where our company is supporting them. We have companies like the Quint. Quint is completely on that platform. We have Bloomberg Quint. We have National Herald. National Herald has Qaumi Awaaz, and I think Navjeevan, their Hindi publication. Like that, we are talking to many other publishing companies globally also, where using this platform they can publish online. So like this, I had opportunity to work with many big companies. It was very, very humbling experience that I was part of one assignment. We were working with Ford Motors, and with Ford Motors, uh, we had around 400 people in their software team working for them. This was in my previous company, Cyber, when in Cyber India had 1,500 people, but Cyber globally, we had around 4,000 employees, and out of 4,000 employees, 400 were working for Ford Motors. So we also got an opportunity to work with companies like Philips. So Philips is a Netherlands headquartered company, and they were in I would say around 2011-12 timeframe. They were looking at rationalizing. See, Philips, you've seen, we all know Philips was a great consumer electronics company, and they are today not there. I mean, there used to be Philips televisions. When I was a kid, we had Philips radios at home. Philips was such a iconic old company. But in consumer electronics, they could not withstand the onslaught of Japanese and Korean and Chinese manufacturers. So at that time, Philips was looking at rationalizing and cost cutting, and they wanted to look at how they can reduce their IT costs. So out of Netherlands, we signed a deal with them where we assured them that over a period of 18 months, 1.5 years, we will have about 700 employees based out of India. This was out of Bangalore primarily, who could serve their entire IT organization all over the world. So Philips business in South America, North America, Europe, Africa. I mean, this is a very well entrenched company. So in 18 months period, we were given this mandate of 800 employees bringing in India, and we were among the 4 companies who were trying to do that, and we were able to get 300 employees market share for on this opportunity. So we had opportunity to work with companies like Aptiv, which was earlier part of this is the automotive company. They supply. So when Ford or Maruti is looking at a new infotainment system, they would come to this company called Aptiv, and they say, okay, you develop for my next cars which are coming in, let's say 2022. You give me a modern
infotainment system for the car. So we worked with them. We worked in embedded area. We worked in Internet of Things, IoT. So today we have a division. We have a few divisions in our company. I will not take too much time on that. We have a division that is working on automotive and embedded systems. So automotive is working for automobile. We are working for companies like Aptiv. And embedded system is we are working with items like RFID. Who talked about RFID? Uh, Rajiv Kumar Upadhyay. So our RFID medical ID kind of stuff. So we have one division that is focusing on this area. We have another division which is actually working on digital marketing and digital transformation. Today we are helping many companies in India to go to e-commerce because shops are closed. I have a customer who used to do maybe 5-6 crores of monthly business in their shops, and today all that business has become 5% or 10% because nobody wants to shop. And we helped them do e-commerce interestingly 2 years ago, and their business started with like 5 lakhs per month, 10 lakhs per month. Today that guy is doing more than 1 crore a month on their online store, and we are helping them do that store. To cut the story short, I don't want to too much bore you with a lot of this stuff, but the journey has been very interesting. Somewhere I again wanted to become an entrepreneur and have your own business where you have more freedom and you can work in innovation, trying to come up with new products, new services for customers. So it has been an amazing journey. I think I wanted to, I would not want to take too much time. If anybody has any questions, I'll be happy to answer. Things have कुछ questions, sir? कोई any questions? सर से कोई क्वेश्चन? सर मैं सर्वेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण से। हाँ जी सर्वेश जी बोलिए। एक छोटा सा क्वेरी है सर, जो स्थितियां अभी प्रिंट मीडिया की चल रही है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका एक वाइड एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल नेशनल जो भी है, तो अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और आगे क्या हम देख रहे हैं अपने करियर के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में? देखो, बहुत सटीक सवाल है आपका, और हम में से काफी लोगों को ये इम्पैक्ट करता है। तो देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि आप हमेशा वो जो भी हम जिस भी हम काम से जुड़े हैं उसकी आप परिस्थिति को देखें और देखें कि जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है उस काम का वो क्या है। और जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती हैं तो आपको उनके साथ बदलना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मैं और ऐसे बहुत उदाहरण है हिंदुस्तान में भी, और जब हम 90s में थे तो नोकिया जैसी कंपनी थी। नोकिया के आप शोरूम के बाहर जाएं तो हमेशा एक एस्पिरेशनल होता था, यार सबसे महंगे फोन यहाँ मिलते हैं। yes. और कि भाई अच्छा, हमारी जब सैलरी आएगी तो जोड़ के हम थोड़ा कुछ लोन, कुछ EMI लेके नोकिया का बढ़िया फोन लेंगे। तो वही 5 साल बाद वो नोकिया कंपनी जो है उसका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ गया। तो ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। तो इसमें जो भी समय के साथ, देखिए प्रिंट में अगर आप ये देखें कि अगर आप देखिए प्रिंट में पैकेजिंग भी है, और पैकेजिंग जब से हम 88 में निकले NRIPT से, तो पैकेजिंग जो है वो आज कंपेयर टू 1988 शायद 50 गुना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर चीज जो है पैक होकर आ रही है, उसके ऊपर भी प्रिंटिंग है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर अरे यार हम 4 पेज का न्यूज़लेटर प्रिंट करते थे, वो आजकल कस्टमर खुद प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बिजनेस खत्म हो रहा है। तो आपको हमेशा स्थिति देखते हुए आपको
बदलना है। अब ये मैंने एक बहुत अच्छा मैंने इससे सुना, ये हमारे एक कुलीग्स ने, किसी ने इसी ग्रुप में बोला कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। कौन थे वो? मिस्टर जोशी। अभी लॉकडाउन में जोशी। उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, जोशी जोशी जी, हाँ। तो देखिए, हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। अब आज की डेट में अगर आप सोचते हैं, देखिए आज की डेट में भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वो शायद इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस न्यूज़पेपर है, तो वो बिजनेस आज की डेट में भी कायम है। अगर आप सोचते हैं मेरा बिजनेस न्यूज़ है, डिजिटल में कंटेंट है जिसमें लोग कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, वो बिजनेस आज भी कायम है, आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद भी कायम रहेगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस न्यूज़ पेपर को प्रिंट करना है, तो शायद उसमें दिक्कत है। सर्वेश जी, थैंक यू सर। आपके प्रश्न का उत्तर बहुत मैंने देने का प्रयास जबरदस्त किया। सर। नहीं प्रयास नहीं सर, और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही बात कही। और आपने अपने स्पीच में स्टार्ट में ही कहा था कि अगर हम लोग NRIPT से अगर निकले हैं तो टाइम टू टाइम अगर हम लोग अपने आप को चेंज नहीं करते तो शायद हम वहीं रह जाते जहां से निकले हैं। जिन लोगों ने समय के अनुसार अपने आप को चेंज किया, हमने आपको बताया भी था सर कि हमारा कैंपस के, बताया नहीं था लेकिन हम बता दें कि कैंपस के थ्रू मोनोग्राफ इंडिया लिमिटेड, उसमें पॉलीग्राफ इंडिया लिमिटेड के नाम से थी, जो जर्मन कंपनी थी। तो 18 साल मैंने वहाँ अपना करियर निकाला। और लेटर पे इसके बाद फिर ऑफसेट में गए, ऑफसेट के बाद सीट फेड में, ऑफसेट की सीट फेड में, इसके बाद जब मौसम मतलब माहौल चेंज हुआ तो फिर वेब ऑफसेट में आ गए, फिर मल्टी कलर सीट फेड में चले गए। तो टाइम टू टाइम जो चेंज करते गए उसकी वजह से फिर आज यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज सीट फेड में या वही ट्रेडर में या क्लेटन मशीन लोग उसी में रहे और आज वहीं पे भी हैं। बिल्कुल सही है सर कि आज की डेट में अगर हम कंटेंट्स को देखें तो हम कंटेंट्स कहीं भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ये सोचे कि हमें प्रिंट ही करना है तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर तो हम प्रिंट में ही रह जाएंगे। फिर मुश्किल है, फिर दिक्कत है। मैं भानु सर छोटा सा अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूंगा। When I was working, my last working was with the Quad Graphics. Okay, you know this company. It's second largest company in US. So I was working for a Quadtech. You know, it was their automation company which provided color control systems to all the newspaper. And हम लोग का उस समय 95% market share होता था, except 1 or 2 presses. All Indian and worldwide presses were using a color control system. मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मेरे को एक कस्टमर के साथ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में था, तो उस समय शिकागो में न्यूयॉर्क टाइम्स में स्ट्राइक हो गई थी। तो वहां मैंने पूछा कि भाई ये क्या हो गया, तो बोले यार साहब स्ट्राइक हो गई, प्रेसेस बंद हो रहे हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिसाइड किया था कि उन्होंने मैक्सिमम यूनिट को वो बंद कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे सारा डिजिटल होता जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009-2010 की बात कर रहा हूँ। उसी समय मेरे को लगा कि क्योंकि मैंने अपना कैरियर पब्लिकेशन से स्टार्ट किया, तो पब्लिकेशन ही में था। आई वर्क फॉर अ कोडैक, आई वर्क फॉर अ क्वाडटेक। ओके, सो मेरे को लगा कि ये अब फील्ड ना आने वाले टाइम में, उस समय मैं अपने पीक पे था। तो उसी समय मैंने, जैसे आपने बोला, मैंने अपने को पैकेजिंग में वो किया। एंड फ्रॉम देयर 2012 आई लेफ्ट द जॉब, आई बिकम एंटरप्रेन्योर. ओके, एंड फ्रॉम देयर I took many agencies from Europe, okay, and I started working for India. So what you are saying is a very correct. Okay, आपको right समय में एक decision लेकर के आपको उससे निकल जाना चाहिए। सर्वेश सर, ये लोग हैं, ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, बट इंडिया में क्या होता है, अभी भी न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो एडवर्टीजमेंट है, चीपेस्ट एडवर्टीजमेंट है, वो न्यूज प्रिंट में जाता है। और अभी भी बहुत लंबा वो है। तो आई डोंट थिंक सो कि न्यूज प्रिंट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। बट या अगर समय से अगर आप क्लिक करके एक दूसरा एक सेकंड अल्टरनेट ले लें, तो दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर दोज हु आर वर्किंग इन न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री। करेक्ट। थैंक यू विपिन। सर मैं कॉलेज 88 में पास करने के बाद मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पटना प्रकाश सर के साथ ही गया। ही वाज देयर। वहाँ मैं रहा, मेरा फोकस जो उसमें, वहाँ पर मैं
प्रिंटिंग मशीन में भी था और प्री प्रेस में था। मेरा मेन सेगमेंट प्री प्रेस ही था। और आफ्टर 20 ईयर्स वहाँ वर्क करने के बाद मैं यहाँ इंडिया टुडे ग्रुप में मेल टुडे न्यूज़पेपर था, उसको मैं देख रहा था लास्ट 2 ईयर से, और लास्ट ईयर मैंने उसको कंपनी को छोड़ा। तो सर मेरा है कि मेरा प्री प्रेस में तो है, उसमें वर्किंग नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज भी है। मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ जो कि आपके द्वारा आप कुछ बताएं कि मैं क्या करूँ? अभी तो मैं दूसरे सेगमेंट में चला गया हूँ, मैं सेल्स में हूँ सर, तो मैं क्या डेवलप करूँ अपने आप को सर प्री प्रेस के लिए सर? देखिए, मेरा थोड़ा सा वो प्री प्रेस से काफ़ी समय से जो प्री प्रेस में लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स रहे हैं और कैसे दुनिया, कैसे वहाँ परिस्थितियाँ चेंज होती रही हैं, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मे भी शायद ये हमारे वो भंडारी साहब और अगर वो कुछ इस पे कहना चाहें। देखिए, कुछ तो मैंने देखा कि हमारे काफ़ी आज की डेट में भी आपको बहुत हैरानी होगी। मेरे वो कौन है, हमारे दीपक जी फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, राइट? दीपक मौर्य। मौर्य, दीपक मौर्य। आप हैरान होंगे कि आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर है, जो फोटोशॉप पे काम करता है, इलस्ट्रेटर पे काम करता है, बहुत अच्छी आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी बना सकता है, एक बहुत अच्छा वेब पेज बना सकता है। आप हैरान होंगे कि एक अच्छा डिजाइनर जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से ज्यादा पैसे कमाता है। तो मेरे हिसाब से कंटेंट को थोड़ा सा एक खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करना, ये एक आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। लोग अपनी छोटी छोटी वेबसाइट्स बना रहे हैं क्योंकि वो आजकल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं आसानी से। तो उस पे मेरे हिसाब से डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो प्री प्रेस से शायद सबसे मिलता जुलता या सबसे नज़दीकी स्किल है, जिसकी आने वाले समय में और आज के समय में भी बहुत डिमांड है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस दिन ये किसने, जोशी जी ने कहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, हमारे जितने कस्टमर हैं या आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप आजकल एक ही तरीका है अपने आप को बिजनेस को दिखाने का कि आपकी एक अपनी वेबसाइट है, और लोग जब इंटरनेट पे या गूगल पे खोजें कि भाई ये मुझे ये चीज़, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सर्विस चाहिए। ये भूपेंद्र जी काफ़ी यूरोपियन कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कस्टमर ढूंढता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए या ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो इंटरनेट उसको दिखाता है कि ये 5 रिजल्ट्स हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हर बिजनेस की ज़रूरत है, हर बिजनेस की ज़रूरत है। आप मानेंगे नहीं, हमारा एक कस्टमर है, वो महीने के 10-12 लाख रुपया वो सिर्फ गूगल एड्स पे स्पेंड करता है। या करेक्ट सर। इवन हम लोग भी बहुत ज्यादा पे करते हैं इंडिया मार्ट को कि इंजन सर्च में हमारे प्रोडक्ट ऊपर आए। आज की डेट में मैं एक कंपनी करता हूँ जो सेंसर्स बनाती है, एंड फ्रॉम प्रिंटिंग आई हैव बीन सेलिंग दीस सेंसर्स टू अ बिग कंपनी लाइक वो आर इनटू रोटर्स, ओके, विंड मिल्स को करते हैं। सो उसमें क्या होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल ticket size product, okay, but this is a unique product, okay. So when people they go and they type tachometer, tachometer is a very small device, okay, which I represent a company from Germany, but मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बिकॉज क्या होता है, मेरा एक ट्रस्ट से थोड़ा सा ब्रांड ऊपर चला जाता है। I get a lot of inquiries which is real and which some is a fake also, but yeah, it's true that during the lockdown हमने अपना बिजनेस को हमेशा ऊपर रखा because of the digital marketing, okay. एंड आज की डेट में मैं बहुत सारे जर्मन कंपनीज को स्पीड सेंसर सप्लाई कर रहा हूँ, जो कभी हमारा बिजनेस भी नहीं रहा। आई मीन आई बेसिकली कम्स फ्रॉम प्रिंटिंग फील्ड, but I'm very happy because of this digital marketing, okay. I've been supplying my product to many company, and it's very good.
तो यही है कि भाई प्री प्रेस से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइन है और वेबसाइट मैनेजमेंट है, वेबसाइट होस्टिंग मैनेजमेंट है और डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो उसमें ऐसा होता है कि और बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये सर्वेश जी कर रहे हैं, जागरण में काम कर रहे हैं, तो जागरण में जब आप कंटेंट डालते हैं, न्यूज़ है या किसी आपने आर्टिकल लिखा है, या अभी इन दिनों आप कोई सामरिक एक सब्जेक्ट ले लें जिसके ऊपर आजकल बातचीत हो रही है, तो आप जब आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल के अंदर आपको थोड़े 2-3 टैग डालना है, क्योंकि जब आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च वो उन टैग्स पे होगी। जैसे मान लीजिए ये हम चाइना और भारत विवाद के ऊपर एक किसी ने पत्रकार ने पत्र कुछ लिखा है, तो शायद वो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, पर उसमें वो ऊपर 5 टैग होंगे कि चाइना भारत विवाद, गालवान, पैंगोंग लेक, साउथ चाइना सी। अब वो ऐसे 5-6 टैग जब आप डाल देंगे, तो जब जो रीडर है वो उन टैग्स के ऊपर सर्च करेगा तो वो आर्टिकल नजर आ जाएगा। तो ये बड़ी छोटी सी स्किल है, लेकिन ये सबको आने वाले समय में वो काम करेगी। सर तो इसके देखिए, मैं एक और मैं साइकोलॉजी की भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की भी का भी अध्ययन करता हूँ। तो मैंने देखा है कि ये डज नॉट मैटर इन विच फील्ड यू आर। एक तो ये है कि जिंदगी में हमेशा एक आप कहिए कि ये मेरा प्राइमरी फील्ड है, ये मेरा सेकेंडरी है। करेक्ट। ये मेरी इससे मुझे पैसे मिलते हैं, इससे मुझे आनंद आता है। हाँ, कुछ जी भी है, वो म्यूजिक है, आप साहित्य पढ़ते हैं, आप कुछ और किताबें पढ़ते हैं, जो भी है। तो अगर आपके पास अगर आप एक चीज से ज्यादा किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं, तो आपके थोड़े दरवाजे भी खुल जाते हैं, क्योंकि आपको और कई चीजों का एक मिश्रण, वो कहते हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन जो है, उससे बहुत आसानी हो जाती है कि भाई जैसे परिस्थिति है, उस कठिन परिस्थिति में किस तरीके से थोड़ा चेंज किया जाए, किस तरीके से कुछ और किया जाए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट, मैंने ये देखा कि जो मेरे जानकार लोग और भी कई लोगों, अगर वो एक ही चीज करते हैं और सडनली वो चीज खत्म हो जाए, तो वो आपको झटका देती है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चीजों में अपने आप को लगाया है, तो फिर आप उस एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नई चीजें जो है वो आपको आनंद देंगी। मैं सर समय एक भी देख आपसे रहा हूँ, रवि जी, आप समय का आप मॉडरेटर हैं, आप समय का ध्यान रखें। नहीं बिल्कुल अगर सर। समय है तो हम नहीं सर, बातचीत है जारी करते हैं, है तो सर, है आप बता सर। दें, उस हिसाब से हम चलते रहेंगे। नहीं सर नहीं इतने एक सालों के छोटा बाद मिले हैं तो एक समय का मतलब ही नहीं होना चाहिए सर। अब तो मतलब मुझे इतना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सर। हमें 30 बस आप रवि जी की मर्यादा को सर थोड़ा 34 ईयर्स समझना हो गया सर, आपके चाहिए। दर्शन अभी हो रहे हैं एक एक 34 साल बाद सर। भानु सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। एक मैंने नई सर्विसेज कंपनी शुरू की है, जो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टेड टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में मैक्सिमम क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, लोग प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर देते हैं, सर्विसेज पे कम देते हैं। एंड बड़े बड़े पैकेजिंग यूनिट्स देखेंगे, उसमें उन्होंने करोड़ों के इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, बट अगर उनको बोलें कि कोई मेंटेनेंस का बंदा, बिकॉज हम जब मशीन जाते हैं इंस्टॉल करने तो पूछते हैं कि साहब ये बेसिक वर्क करना होगा, तो उनके पास ना तो कोई ढंग का मैकेनिकल इंजीनियर है, ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ना तो इलेक्ट्रिकल। तो ये देख करके मैंने पहले ऑफसेट में शुरू किया था, बट ऑफसेट मेरा डोमेन लाइन अब रहा नहीं, मेरा मेन डोमेन लाइन पैकेजिंग है, तो वो मैंने अपने पार्टनर्स जो थे उनको दे दिया। नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड। नाउ अभी मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, विच इज बेसिकली अ पैकेजिंग कंपनी। तो मेरा क्वेश्चन है, आई मीन मेरे को कुछ इन्वेस्टर्स चाहिए, तो हाउ आई गेट द इन्वेस्टर, बिकॉज this is going to be very big, because I've been employing many engineers. Okay, और वो engineer क्या होता है, they are very expensive engineer. तो शुरू में 1-2 साल के expenses को meet out करने के लिए, break even आने के लिए, I need so if you can help me
to get some investor मैं या आपसे मैं आपसे मैं investment. आपसे अलग से इसके बारे में बात करूंगा, तो शायद Okay. कुछ मैं इंस्टीट्यूशंस या कुछ Yeah, उनके investor बारे में bankers, if they जानकारी are शेयर interested. करेंगे. Yeah, You know, correct, maybe correct. it can be of help. Certainly, Okay, I will thank you. speak to you. सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, मैं इसमें सर कि सपोज दैट हम अभी प्राइम फील्ड पे मैक्सिमम फोकस किए हुए हैं, उसके साथ अगर जैसे डिजिटलाइजेशन फील्ड में हम थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहें, तो जैसे आजकल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, थ्रू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वी आर मूविंग लाइक Quark and other companies, या ई पब्लिशिंग लाइक टेक बुक एंड अदर. देखिए आप अपना प्रश्न कंप्लीट कीजिए. सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट किया मैंने आपको. जैसे आप अपना प्रश्न कंप्लीट कीजिए. सर सपोज दैट हम प्रिंट मीडिया में we are working in print media, and as discussed, print media going in the decline phase, but not going to finish, because in Delhi NCR they are doing well. So we have to work in the second side of a minor activities. So we work to the digital field like software testing. So there is another opportunity like express their bugging and debugging testing, where printing technologist is also there. So it would be for me. Very good question. I think, you know, we are, as I indicated, that, you know, you should not say that you are in print business. You are in content business. You know, if you are working for a newspaper, you are in content business, and that business will not go away. Even 5 years from now, 10 years from now, it is not going away. I think in next, maybe next 4 people who are from newspaper industry, they know it better. I think India is still at the cusp of acceleration in a newspaper so-called readership, because it is so cheap. You know, in 2-3 rupees, you will never get 15-20 pages of content, which for a poor person, actually, it is much easier to consume than trying to consume it on a smartphone with data plan, etc. So I think next few years, newspapers are still there. But I'm telling you, I have been to many countries in Europe, you know, North America, Canada. Newspaper is shrinking. You know, the print editions are going away. Many magazines have this was a magazine called Time magazine. There was another along with Time, yeah, Newsweek. Newsweek was a magazine published from New York. They stopped print edition, and now it is only digital edition. Now, interestingly, see, my daughter, I have 2 kids. My daughter is she's based out of Washington DC. She's done masters in economics, and she's working for a company there. So she gave me this Economist magazine subscription. So that magazine comes to my house every week. Now in lockdown, magazine stopped coming, but the digital edition is still coming. So interestingly, you know, Veer Bahadur, trying to answer your question, every business will be touched by digital, you like it or not. So try to understand how digital can help the business you are in, whatever business that is. And it is again not a rocket science. You know, you can pick one small area in digital. See, let's say, you know, you are right now you are Times of India. You are with Times of India. See, Times of India is a shining example how they have transformed into a multimedia conglomerate. See, they are doing Ghana, they are doing you know, music. They have Times Internet. You know, newspaper is just one of the items. They are not going to go away. Recently launched the university, international university. Yeah, they have Bennett University also. So I think for you, trying to understand digital is the best way. You know, there are a lot of courses on the internet. So testing alone may not be very lucrative. See, testing is also finding difficulty. See, 10-20 years ago, software test engineer was a good role, but today it is now getting mixed with software developer. So now developers have to do testing. You know, testing alone is no longer very lucrative. So I think digital marketing, you know, what is happening on the content side. There are many small companies, you know, new publications are coming, and you know, they are a little bit
they do not know. They need skills like digital marketing, graphic design. See, those skills will still they are very, very hot. Okay, sir. Thank you, sir. इकरार अहमद कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ उन्होंने हैंड किया, ऊपर किया। इकरार कुछ पूछना चाहते हैं सर से? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ सर से क्या पहले तो मैं लंबे स्पेल के बाद भानु सर से मुलाकात हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स और नए डिजिटल इंडिया में हैं या यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं। हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हम जो है इंडस्ट्री में तो खैर बहुत कम एसोसिएट हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हमारी नहीं है। लेकिन हम कॉलेज से रेगुलर टच में हैं सर। और इस समय उपाध्याय जी दिख रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया हमारे वहाँ से बच्चे जो निकलते हैं उनको अब्सॉर्ब करवाने के लिए। मैं सर भानु सर एक गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा कोई अपडेशन हो। जो देखिए हम लोग तो इंडस्ट्री में आके अपने 35 साल पूरे कर लिए, सर्वाइवल में अपने आगे बढ़ गए, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, एडजस्ट हो गए। लेकिन अभी जो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, जो NRIPT का जो स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, थोड़ा बदलाव हुआ। लेकिन हम आपसे एक सजेशन चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि हम लोग बहुत छोटे वहदों पे हैं, जो हमारी बात शायद हम अगर स्कूल को शेयर करें या स्कूल प्रबंधन को बोलते हैं। इवन हम कानपुर में डायरेक्टर से भी मिलने गए थे, टेक्निकल डायरेक्टर से, कि कुछ नई चीजें कंप्यूटर से रिलेटेड अडॉप्ट करे कॉलेज, बच्चों को कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए ताकि वो निकल के इमीडिएट इंडस्ट्री में आए। तो जब प्रिंट मीडिया ही कमजोर हो रही है, पब्लिकेशन कमजोर हो रहा है, प्रिंटिंग लो होती जा रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो बच्चे, चूंकि एडमिशन तो बंद नहीं हो रहा, एडमिशन का स्ट्रेंथ भी कम नहीं हो रहा, तो बच्चे रेगुलर फ्रीक्वेंट आ रहे हैं। उन परंपराओं में ये बात रही है कि इंडस्ट्री में जब भी तुम पढ़ के जाओगे आगे तो सीनियर बैठे हुए हेल्प के लिए। तो मैं ये चाह रहा था कि हमारी बात शायद उतना एकेडमिशियन ना सुने, और टेक्निकल डायरेक्टर को भी अप्रोच किया हमने। एक बार इसलिए फंक्शन में आपको इनवाइट करने की कोशिश किया था, पर आपके पास टाइम नहीं था। उस समय हम टेक्निकल डायरेक्टर को भी बुलाए थे। इवन हम स्पेशल जो उनके टेक्निकल सेक्रेटरीज होते थे, IAS अफसर, उनको बुलाया था, ताकि एक जो हम शायद एक छोटे लेवल के आदमी हैं, हमारी बात शायद उतना इम्पैक्ट न डाले, लेकिन आप जैसे लोग जो एक आइकॉन हैं, अगर उनकी बात वहां जाए तो शायद कॉलेज को थोड़ा फंड मिले या मॉडरेट करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए कुछ बात बने, और वो बच्चे थोड़ी नई टेक्नोलॉजी सीख के आवे, इंडस्ट्री में जॉब मिले। क्योंकि आज की तारीख में इस समय सिर्फ हमारे पास ले दे के पैकेजिंग इंडस्ट्री बची है, जहां हर रोज मैं बात करता हूँ, एक दो बच्चों को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता हूँ, हो जाए। कल परसों की बात है, रिसेंटली एक तिलक बाबू हैं उमा कंटेनर्स में अहमदाबाद में, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने 9 बच्चों को सिलेक्ट किया, हमने अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया कॉलेज को। तो जहां 74-70 के आसपास बच्चे निकल रहे हैं, थोड़ा सा हेल्प इस लाइन में, चूंकि सब चीज अपग्रेड हो रहा है, हम लोग थोड़ा पीछे हैं, तो थोड़ा आपका सजेशन चाहिए, ताकि उस सजेशन को हम डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर के पास लेके जाएंगे और प्रिंसिपल के पास जाएंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ हेल्प हो सके। जी सर। नहीं, आपका बहुत अच्छा सुझाव है। और इकरार जी, मैं थोड़ा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि मैं आप पिछली बार जब आप ने समय मांगा, मैं अपनी कुछ कारणों मैं समय नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बहुत अच्छा सुझाव है, और ये रवि जी और हमारे पुराने सीनियर हैं इसमें, जिनका बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, और उसमें एकेडमिक्स भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है, तो बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो कई चीज़ों में है, लेकिन वो अपने आप में वो भी एक सीमित दायरा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो लोग इस एरिया में और आगे आना चाहें और मदद करना चाहें,
तो एक हमारी जो NRIPT की एसोसिएशन है, वो एक अपने आप में एक काउंसिल बना सकती है, जो काउंसिल में हम पैकेजिंग से कुछ लोग लें, प्रिंटिंग से कुछ लोग लें, डिजिटल से कुछ लोग लें, और ये देखें कि नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो किन क्षेत्रों में हैं, और हम उन अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हम कुछ रिकमेंडेशंस हम अपनी इंस्टीट्यूट को, जो हमारी देखा जाए तो वो मैंने शुरू में जैसे कहा कि वो हमारे गुरु रहे हैं, हम जहाँ हैं उन्हीं की वजह से हैं, तो ये हमारा एक ऑब्लिगेशन भी है। और तो रवि जी और आप इसमें बहुत सक्रिय रहे हैं ये एसोसिएशन में, तो आप एलुमनाई एक हमारी लिस्ट को देखें और देखें कि किन किन क्षेत्रों में किन लोगों को मौका मिला एक एक्सपर्टीज हासिल करने का। तो उसमें ठीक है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए एकेडमिक्स का, कि जो लोग जिन लोग जैसे मेहंदी रत्ता साहब एकेडमिक्स में रहे, जो लोग अभी प्री प्रेस में हैं, कोर प्रिंटिंग में हैं, और फिर हम उसमें प्री प्रेस में देखें, फिर देखिए काफ़ी जो कंटेंट है वो डिजिटल हो रहा है, उसमें डिजिटल के क्षेत्र में मैं भी अपने जो भी मेरे अपने सीमित दायरे हैं और जो मैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कुछ पॉइंट्स दे सकता हूँ मैं भी दूंगा। तो हम एक छोटा सा, अगर आप 10-12 लोगों की एक ऐसे एक काउंसिल सी बना दें, या एक लूज है, देखिए इसमें जो वॉलंटरी है, इसमें किसी को कोई फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और हम एसोसिएशन की तरफ से, और ये एक छोटा सा हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए वो प्रयास आगे जाके वो कितना मददगार होता है, कितना उस पर वो लोग एक्शन ले पाते हैं, वो उनका काम है। हमारा काम सुझाव देना है, थोड़ा बहुत हम इसमें करेंगे। मैं इसमें अपना समय जी जी देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। सर अभी मिस्टर सूरज अभी कनेक्ट हुए हैं। सूरज अपना कुछ बता, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर को। सूरज अनम्यूट करो सूरज, अनम्यूट करो अपने को सूरज। हेलो, यस, ऑडियो सर बोलो। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग हमारा। सर सूरज जी नमस्कार। मैंने अभी एक छोटा सा प्लान डाला है डिस्पोजल आइटम का। मैं पहले मुजेवर में था, मुजेवर बंद हो गई तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। अभी सर मैं डिस्पोजल आइटम कर रहा हूँ, अभी टिश्यू पेपर का ही मैं जस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पेंट्री फील्ड से थोड़ा सा हट गया है मेरा, लेकिन आगे प्रिंटिंग में भी मुझे करना है, तो थोड़ा सजेशन दीजिए सर क्या करना चाहिए। और देखिए मतलब ये टिश्यू का जो आपने नई अपॉर्चुनिटी है, वो बिल्कुल वो हाइजीन और क्लीनलीनेस और इन सब से ये आजकल बड़ी बहुत मैंने कई कंपनियां देखी जो शराब बना रही थी, और सडनली ओवरनाइट उन्होंने उसको चेंज करके सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, और काफ़ी बिक्री सैनिटाइजर की हुई। तो आई थिंक आप अपने जो आपके जिस तरह के आपके कस्टमर हैं, आप जिनको आप सामान जिनके लिए बनाते हैं, तो आप उसमें आप नई देखिए क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो उसमें कहाँ पे आपका प्लांट कहाँ पे है? सर इंदिरापुरम गाजियाबाद। अच्छा, इंदिरापुरम में है। गाजियाबाद सर ये हम हमारे बैच के एक मतलब वो है एक तरह से सर, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा इनसे। जैसे आपकी डिस्कस यहाँ पे हो रहा था, ये जॉब कर रहे थे मोजर बियर में और पैरेलल अपनी इंडस्ट्री भी चला रहे थे। तो मोजर बियर जैसे ही क्लोज हुआ तो मतलब अकॉर्डिंगली इमीडिएट बर्डन नहीं पड़ा, ये अपने आप को वहाँ पे कॉम्पिटेंस कर गए। तो नहीं, मैं बानू तुम्हें एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। तुम ये टिश्यू के साथ क्लिंग फिल्म का भी बिजनेस कर सकते हो। क्लिंग फिल्म समझते हो आप? जो एयरपोर्ट और कहीं भी जाओ आज की डेट में, अगर जितने तुम्हारे FMCG जो इवन अमेजन है, सारे जो पैकिंग होते हैं, तो उसके जो टॉप पे जो फिल्म लगती है विच इज स्ट्रेचेबल, ओके, तो क्लिंग फिल्म में भी जा सकते हो। पैरेलल इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लिंग फिल्म में बड़े बड़े अभी जम्बो रोल लेकर के तुम छोटे छोटे उसमें कर सकते हो। साथ हाँ सर, निकल गया है क्या? आ जाइए सर।
ठीक है सर, ठीक है। सकते हो यहाँ पे क्लिंग फिल्म एंड फॉयल को, इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग बिजनेस। तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्या क्या मशीनें उसके लिए रिक्वायर्ड है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, थैंक यू सर। और भंडारी सर कुछ पूछना चाहते हैं? भंडारी सर, हाँ सर, ये अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में थे और मैंने जो काम किया, दिल्ली का एक बहुत बड़ा मास्टर था स्कैनिंग के अंदर। फिर मैंने बारकोड स्टेशन पे काम किया, फिर मैंने डॉक्टर हेल के भी उस पे पेज मेकअप स्टेशन पे काम किया। सर आज मेरा उसी इंडस्ट्री में काम करने को बहुत दिल करता है। मैं चाहे किसी की मदद करूं, चाहे मैं कैसे भी करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। मैं ये फोटोशॉप में नहीं गया, मैं दूसरी चीजों में नहीं गया, लेकिन क्या है कि हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ काम करना चाहता हूँ, इसी इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ। आप बताइए क्या कराना चाहिए, क्या मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ? देखिए मेरा मेरा मैं आपसे मिला हुआ हूँ, आपसे बिल्कुल, मिला मुझे हूँ। मुझे मुझे याद है, मुझे याद है। देखिए मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि अगर आपके पास कस्टमर हैं जो किसी तरह का भी काम करते हैं, हाँ, जैसे समय चेंज होता है, उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हैं। अगर हम उन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को, उन कस्टमर्स की नब्ज को समझते रहें, तो अपॉर्चुनिटीज निकलती आती हैं। तो जी आपको जी ये जी। देखना है कि भंडारी साहब, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जैसे आप मुझे याद है वो आपने बलबीर सिंह जी का नाम लिया। बलबीर सिंह जी हमारे जी गुरु रहे हैं। हाँ जब जी, हाँ मैंने जी, मायर में काम किया तो बलबीर सिंह जी के साथ हमने भी काम किया। तो एक YVS वो ठाकुर कवि साहब होते थे, वो ठाकुर साहब भी हमारे गुरु रहे हैं, बिल्कुल। वो तो मैं दोनों मेरे उनको गुरु। बीच में ढूंढ रहा था, तो मुझे काफी, क्योंकि वो हमारे पहले मैनेजर थे। YVS ठाकुर जो थे वो मायर में हमारे पहले मैनेजर थे। तो जी ये मैंने देखा है कि आप देखिए, जिस चीज में आपको पैशन है, आपको अच्छा लगता है कि मैं ये जैसे आपकी रुचि है, तो उसमें क्या नया हो रहा है, उस नए चीज को सीखते रहें और कुछ ना कुछ करते रहें। तो देखिए, ग्राफिक डिजाइन और कंटेंट में तो बहुत काम है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जो जर्नलिस्ट है वो तो टेक्स्ट बना रहा है, उसके बाद उस टेक्स्ट को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना है। तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत है, उसमें उसको किस तरीके से उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है उसमें। तो आप उसमें उससे रिलेटेड आप चीजें देखते रहिए। तो सर जैसे ऐसा है, अगर एज आप इमेज को आप जैसे चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं आज की डेट में। फोटोशॉप तो बहुत उस पुराने समय से चलता आ रहा है, पर ऐसे और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि 3D स्कैनर है सर, 3D प्रिंटिंग, 3D 3D प्रिंटिंग इज अनदर डिजाइनिंग अपॉर्चुनिटी। itself is a 3D design itself is a very good field. सर ऐसा है ना कि अब हमें ये होता है ना कि हमें थोड़ा सा कोई हाथ पकड़ के अगर सिखा देगा तो दूर तक निकल जाएंगे, ये चक्कर होता है। अब अपने पास तो यूनिट लगे नहीं हुए, घर बैठे हैं और खाली बैठे हैं, काम करना चाहते हैं, दिल बड़ा करता है कि यार इसी इंडस्ट्री में फिर से थोड़ा बहुत सिक्का जमा, पैसे कमाने, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, फिर भी नहीं, वो इंटरेस्ट तो आता है है कि कि यार वो बेसिक है काम अपने कर। आप को, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है, आप आई थिंक वो भूपेंद्र जी के पास भी शायद कुछ आइडियाज होंगे हाँ जी। कि नहीं उनके सर, एरिया में अगर आपका अगर कैसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर आप हाँ, बताइए अपना भूपेंद्र नंबर जी। शेयर करें, अगर आप अपना नंबर शेयर करें, सी आज की डेट में जैसे भानु सर बोल रहे थे, स्पेशली डिजाइन की वैल्यू बढ़ गई जब से डिजिटल मीडिया ऊपर आया हुआ है। अभी सभी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए दे नीड अ डिजाइन, ओके। तो डिजाइनर्स डिजाइन के अभी कुछ क्या नहीं। होता है,
एक बार फिर से वैल्यू बढ़ गई। एक समय क्या था, आज से 10 साल पहले डिजाइनर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। जब से डिजिटल मीडिया ऊपर आया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ा हुआ है, तो आप जैसे लोगों की इम्पोर्टेंस फिर से बढ़ गई। बिकॉज क्या था, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए 3D जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, which is going to be very good, okay? अब 3D में क्या होता है, there is a lot of tools is there, machines जो क्या होता है जो 3D स्कैन करती है। सपोज क्या होता है, मुझे आज अपने मोबाइल का सेम एज इट इज अपलोड करना है, सो मुझे क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या सीखे, वो कलर स्कैन सीखे। कलर में क्या होता है, CMYK स्कैन करता है, बट अगर 3D जाएंगे तो उसमें आपको एक्सेस करना होगा। तो अभी जैसे जर्मनी या चाइना भी चले जाएं, विच इज अ वेरी गुड, आप देखेंगे जितने आपको वॉल डिजाइन आ रहे हैं वो सारे 3D हैं। तो उसमें क्या होता है, इट्स कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी 6 to 5 टेक्नोलॉजी। मींस क्या होता है, 3 आप CMYK लेंगे, ओके, और 3 एक्सेस लेंगे, मतलब XYZ, और उसको कंबाइन करके आपको जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। मतलब 3 कलर तो मिलेंगे पर 2 एक्सेस मिलेगा, X and Y, so which is called 6 to 5 टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है, रियल और डिजिटल आप डिजाइनिंग करेंगे, जो अभी क्या होता है बड़ा इनोवेटिव फील्ड है, बट बहुत कम लोगों का इसमें एक्सपोजर है। अगर आप उसमें जाएं, आज की डेट में जितने पैकेजिंग कंपनी लाइक अफ्लेटस है, एक नोएडा में कंपनी है, they are doing a very good job for a 3D design, okay? तो जितने आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे उसको, आप देखेंगे तो लगता है वो प्रोडक्ट पैकेजिंग से बाहर आ रहा, तो उसमें आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपकी थोड़ी सी आप अपना नंबर बोल दीजिए सर, एक बार नंबर बोल दीजिए सर। मेरा नंबर है 98 11 22 69 14। ठीक है सर। क्या नाम और सर? लास्ट में एक 10 है, लास्ट वाला 0 है, सो 2 नंबर है मेरे, पर पहले वाले पे कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा। क्या नाम सर, शुभ नाम पूरा? भूपेंद्र मुझे कहते हैं। ठीक है सर, हम लोग, थैंक यू सर। सर हम लोग जो है, और अगर आप एक संदीप सिंह है, हमारे कॉलेज के सीनियर है, वो अभी जुपिटर में बहुत बड़ा प्लांट डाले हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा स्कैनिंग और इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट दे आर पुटिंग, जुपिटर लैमिनेटर के नाम से है। मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, मैं दिल्ली का एक बहुत बढ़िया मास्टर रहा हूँ, मैं उनकी पूरी हेल्प कर दूं। हाँ, तो वो आप आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा शॉर्टेज है आर्ट प्रो आर्टिस्ट की, क्योंकि डिजाइन के बाद क्या होता है जो प्लानिंग है, और आर्ट प्रो में क्या होता है सबसे ज्यादा शॉर्टेज। जितने जगह मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं, यार मुझे आर्ट प्रो का एक बंदा दिला दो। सो आर्ट प्रो क्या था, अगर किसी को नॉलेज है आर्ट प्रो बेसिक प्लानिंग की, तो उसको तो किसी तरह की जॉब की शॉर्टेज है ही नहीं। तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। आई मीन इट्स नाइस कि आप इसका एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं आपकी डेफिनेटली पूरी हेल्प करूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, हम लोग एक NRIPT का एक टेलीफोन डायरेक्टरी जो है अभी प्रिंट करने वाले हैं। तो पहले प्रिंट हुआ था, उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने जो फॉर्म आता है उसका मैंने ऑलरेडी मेल पर और व्हाट्सएप में डाला था। तो प्लीज़ आप लोग उसको फिल कर दीजिए, और कर देंगे तो फिर मेरे पास सारी डिटेल्स आ जाएगी एक्सेल में। फिर उसको मैं प्रिंट करके डिजिटली या तो सर्कुलेट कर दूंगा, या प्रिंट जब एलुमनी मीट होगी तो उसमें सबको उसकी प्रिंटेड कॉपी दे दूंगा सर। उसका आप प्रोग्राम करो ना सर। जी नेक्स्ट ईयर सर प्लानिंग है। प्रोग्राम करो जी और थोड़ा कोरोना निकल जाए। यस सर। ठीक है। हाँ सर, मैं नोटबंदी ने हमको फंसा दिया, तैयारी मेरी हो गई थी, फिर सर जी। अब सर मैं अपने जो प्रेसिडेंट है मेरे सिन्हा सर से कहूँगा कुछ बताएं आगे क्या करना है। सर से बात होगी। सिन्हा सर है? हाँ सिन्हा सर। धन्यवाद रवि जी। यस सर। रवि जी, यस सर। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा था। हाँ सर बताएं सर। हेलो रवि। यस सर। हेलो। मैं थोड़ा सा ये इकरार अहमद। हेलो, मैं मानेंद्र सिंह। हाँ यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? मानेंद्र सिंह
अभी इकरार ने थोड़ी सी बात कही इंस्टीट्यूट के लिए, इलाहाबाद के लिए। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? तो एक्चुअल में मैं वहाँ एग्जामिनर भी हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेता हूँ और वहाँ के पेपर भी सेट करता हूँ और कॉपियाँ भी मेरे पास आती है। तो वहाँ का जो एक एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा सा बदल हुआ है, इसलिए बच्चों के साथ ऐसे ही बैचेस निकल रहे हैं। हम लोग इस पे के लिए आवाज साफ नहीं आ रही है सर आपकी। रवि खत्म करो। आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर, चलिए सर। हाँ सिन्हा सर कुछ यस सर। चलिए रवि जी, हेलो, आवाज आ रही होगी? भानु सर आ गए? भानु सर, हाँ हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी मैं जी 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 डिस्कनेक्ट हो गया था। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आशा है कि भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। मैं यहाँ पर 2-3 चीज बताना चाहूंगा। NRIPT के बीच में एक डॉक्टर साहब ने एक प्रश्न उठाया था, मुझे नहीं मालूम कि क्यों से उन्होंने उठाया था, जबकि उनको पता है कि NRIPT एल्युमिनियम एसोसिएशन ने अभी तक क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके बहुत मुख्य पिलर हैं और शायद उन्हीं के वही प्रयास कर रहे हैं। शायद उसको एक्सप्लेन न करके उन्होंने नई बात और कुछ जानने के लिए शायद ये सवाल उठाया होगा। अब मैं आप जितने लोग भी हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि NRIPT का, जैसे मनेंद्र सिंह बोले थे कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, ये सच है कि थोड़ा सा पहले से स्टैंडर्ड गिरा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड केवल वहीं का नहीं गिरा है, स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉट डाउन, ये आपको मानना पड़ेगा। और अभी क्या हुआ है कि लोग बहुत ही ज्यादा फोकस होकर काम करते हैं, केवल वो रट्टाफिकेशन जो हम लोग पहले अपनी भाषा में इस्तेमाल करते थे, केवल रट्टाफिकेशन पर डिपेंड करते हैं कि एक बार पढ़ लिया और पास हो गए। अभी जो है किसी को ज्ञान अर्जित करने के बारे में वो नहीं सोचते हैं, वो केवल पास करने के बारे में सोचते हैं। और यही कारण है कि लोगों के पास वर्सेटाइल एक्सपीरियंस, वर्सेटाइल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या वर्सेटाइल नॉलेज लोगों के पास नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, हमने देखा है, हम तो आप मनेंद्र सिंह, आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। मैं आपको, मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं आपको, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, हेलो, आ रही है सर। हाँ, मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर लोगों ने थ्रू आउट फर्स्ट क्लास क्या बोलते हैं आपको, गोल्ड मेडल के साथ लोगों ने पास किया है, एमटेक पास किया है, पीएचडी कर रहे हैं, और उनको नहीं पता कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। ये आप उन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जिनके बारे में बहुत दावे ठोके जाते हैं कि शायद हेलो, नेटवर्क इशू के लग रहा है अरुण सर का। सबसे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और सबसे ज्यादा पढ़ाई करवा रहे हैं, या सबसे अच्छा जो कुछ भी हो। और अगर आप वहाँ के बच्चों को देखेंगे, मैं जाता रहता हूँ वहाँ के, मैं प्रोफेसर तक के इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, और तो अपने को ये कहते हैं कि दे आर ऑलवेज देयर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? हेलो, आ रही है हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। इसी स्टैंडर्ड को बचाने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है, और ये अभियान उसी तहत में है कि किताब से हटकर, इंस्टीट्यूट से हटकर, प्रैक्टिकल क्लासेस से हटकर, थ्योरेटिकल क्लासेस से हटकर, जो प्रैक्टिकल ज्ञान जो लोगों के पास है, आप जैसे सीनियर्स के पास है, उनसे कैसे उन लोगों का अनुभव साझा किया जाए, और जिसमें के हैं और अभी फिर आ रहे हैं, उनको वो ज्ञान अर्जित हो सके और ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। जहां तक सवाल है NRIPT की बात कर रहा हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रवि जी ने आप लोग के सारे ग्रुप में डाले हैं, चिट्ठियां डाली हैं। आवाज मेरी जा रही है भाई? तो जरा उंगली उठाते रहिएगा, मुझे पता चलता रहेगा। हेलो, तो ठीक है, अगर आवाज नहीं आए तो कोई उंगली उठा देगा तो मुझे पता चल जाएगा।
तो अभी हम लोगों ने योगी जी को भी चिट्ठी लिखी है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी है, टेक्निकल डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखी है, और मिनिस्टर जो टेक्निकल एजुकेशन उनको भी लिखी है, और केवल ये लिखी है कि हमारे इंस्टीट्यूट को दोबारा वो हैसियत प्रदान की जाए जो पहले कभी थी, जब हम लोग पढ़ रहे थे, या हम लोग के बहुत साल 15-20 साल बाद तक वो उसकी हैसियत रही। और मुझे पूरा, और दूसरी तरफ से भी पूरा प्रयास हो रहा है कि हम उसके स्टैंडर्ड को, उसकी गरिमा को फिर वहीं ले आए जहां हम लोग पहले थे। अगर आप लोग को अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो ग्रुप में अगर दोबारा आप रेफर करेंगे तो आपको चिट्ठियां मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर प्लस एमएसएमई मिनिस्टर, और सेक्रेटरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सारे देते हैं, उन सबको अप्रोच किया है कि हमारे इंस्टीट्यूट को एक यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी जाए, हमारे इंस्टीट्यूट को एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी जाए, और उसके लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए जिसमें वो सब लोग हो, जैसे अभी विवान जी बोल रहे थे कि एक काउंसिल बनाई जाए। वो सारा कुछ उस चिट्ठी में लिखा है, कृपया उस पर गौर करें। और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैंने वीरभान जी के मुंह से सुना वही बातें जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिखकर भेजी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सोच केवल हम लोगों की नहीं है बल्कि उन सब की है जो इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकल के आए हैं। प्रयास जारी है, ये अवश्य है, समय लगेगा, लेकिन प्रयास जारी है, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा इंस्टीट्यूट एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित होगा और हम सब वहाँ उपस्थित होंगे। हम सब इंजॉय करेंगे कि वो इंस्टीट्यूट एक यूनिवर्सिटी बन गया। प्रयास थोड़ा सा, आप तो जानते हैं, समय लगता है, सरकारी कार्य है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कुछ लोगों का प्रयास ये रहा है, आपको ये मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का प्रयास रहा है कि उसको प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए। कुछ लोगों ने अभी भी प्रयास लोग कर रहे हैं कि उसको प्राइवेट हैंड में दे दिया जाए। प्राइवेट लोग ये चाहते हैं कि उस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसी और नाम पर रख दिया जाए। वो लोग तैयार है कि उसको फाइनेंस भी कर दिया जाएगा। हर तरह से लोग उसके पीछे लगे हैं, लेकिन हम लोग पूरे प्रयास में लगे हैं कि उसकी जो एक संस्थागत सरकारी जो एक गरिमा बरकरार है, जिसकी मान्यता है, उसको हम बनाकर रखें, उसी के अनुसार काम करते रहें, और उसी के अंदर कार्य करते हुए, उसी पैराफेरियल में काम करते हुए, उसी एक एनवायरनमेंट में काम करते हुए हम उसके स्तर को न केवल बीटेक, एमटेक, बल्कि पीएचडी, और क्योंकि हमारे उत्तर भारत में कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा, आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर बीटेक, एमटेक या पीएचडी प्रिंटिंग में प्रदान की जाए। कहने को बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ज्ञान की भाषा जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसलिए बताने को पूरा बहुत विद अथॉरिटी ये बात कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के हर कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लें, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस कमीशन ले लें या यूपीएससी ले लें, हर जगह मैं जाता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, और मैं वहां पर देखता हूँ कि हमारे स्टैंडर्ड जो पढ़ के लोग आ रहे हैं, कहने के लिए बीटेक है, एमटेक है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनका ज्ञान की जो एक जो गरिमा होनी चाहिए, वो धारा कहीं ना कहीं रुकी हुई है, अविरल धारा नहीं है। हम उस चीज को रोकने के लिए अपने एनआरआईपीटी इंस्टीट्यूट को हम चाहते हैं कि उसका नाम एनआरआईपीटी इंस्टीट्यूट से बदलकर उसको कहा जाए वो नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग। बीएम पूरा नाम क्या है तुम बता देना, तो अच्छी तरह से बता देना। बीएम और रवि इसमें बहुत वो है, चिट्ठी आपको पूरा पढ़ लीजिएगा। ये लोग हमारे कर्जदार हैं, बीएम हैं, परमिंदर हैं, रवि हैं, इकरार हैं, इन लोगों ने बहुत काम किया। किसी ने कुछ सजेशन, कुछ नाम का भी दिया था, लेकिन हम लोगों ने वो नाम नहीं रखा। हम लोगों ने केवल कहा कि एक रिसर्च सेंटर, मीडिया एंड रिसर्च सेंटर, जी सर, रिसर्च सेंटर करके बनाया गया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, वही रिसर्च सेंटर। हाँ जी, तो जी मित्रों, मैं इतना कहूंगा, रवि जी पूरे प्रयास में लगे हैं, आपके सारे सहयोगी पूरे प्रयास में लगे हैं। अगर आप फोरफ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पीछे से हमारे रीढ़ की हड्डी बने रहिए, हम लोग को सपोर्ट देते रहिए, एलुमनी एसोसिएशन को सपोर्ट देते रहिए, और वो दिन दूर नहीं है जब आपका इंस्टीट्यूट अवश्य एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। इधर से भी कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी कर रहे हैं, और हर तरह से कर रहे हैं। इसमें एक चीज यहाँ जोड़ना मैं चाहूंगा, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, जैसे हमारे टीचर्स हैं, विग्रता साहब हैं, सोनी साहब हैं, माथुर साहब हैं, टी प्रसाद जी हैं, अगर ये लोग
हमारी चिट्ठी जो गई है इसको अपनी चिट्ठी पर, अपने लेटर हेड पर अटैच कर अपनी तरफ से भी अगर भेज सके, वो जिसको भी भेजना चाहे भेज सके, तो ये एक बहुत ही, हम लोग ठीक है, हम MP MLA मिनिस्टर से अलग से पूरी चिट्ठी लिखवा रहे हैं उसको लेके, लेकिन अगर ये लोग भी लिखेंगे तो लोगों को लगेगा कि एक एकेडमिक जो लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो एसोसिएशन के साथ साथ आप लोग का ये भी सहयोग अपेक्षित है और पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। रवि जी से पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो वो सारी चिट्ठियां जो हम लोगों ने ग्रुप में डाली थी, दोबारा उसको ग्रुप में डाल के, जिससे आप लोग को दोबारा याद हो जाए। शायद आप लोगों ने इग्नोर कर दिया हो क्योंकि इतने ज्यादा मैटर आते हैं, देखना मुश्किल हो जाता है। एक बार दोबारा देखेंगे तो फिर याद होगा आपको। और किसी से कुछ हमें नहीं चाहिए, केवल आपका सपोर्ट चाहिए, केवल आपका हमें, हमारी रीढ़ की हड्डी बन के रहिए, एसोसिएशन की रीढ़ की हड्डी बन के रहिए। ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। हमारे साथ मेहदी रत्ता साहब हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं जो 65, 67, 68, 69 सबके हैं, सबका सहयोग है। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं तो ईश्वर करेगा हम अपनी जो हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी जो एक स्वप्न है, उस स्वप्न को हम जीवित और वास्तविकता में परिणित कर पाएंगे। आप सबका पुनः 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 बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, हम लोग बहुत अच्छा लगा। भानु सर आया, भानु सर अपना एक्सपीरियंसेस अपना शेयर किए, बहुत ही अच्छा लगा। अंदर से मैं कैसे बताऊं, इतनी खुशी हो रही है। एक तो भानु सर को देखने 34 साल बाद देख रहे हैं, 34 ईयर्स बाद देख रहे हैं। एक वादा भी लीजिए भानु सर से, एक वादा लीजिए, जब भी हम अगला फंक्शन करेंगे थोड़ा समय निकालेंगे और मार्गदर्शन देंगे। केवल वोट डाला, उससे नहीं लगाया। बिल्कुल, आप जब भी आप मुझे दूसरा मौका देंगे तो मैं प्रयास करूंगा। तो एसोसिएशन के जो हमारे ऑफिस बीयरर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी और रवि जी और बाकी सब लोग जो पुराने लोग जिन्होंने पहले एसोसिएशन का काम किया और जो अभी जुड़े हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो कि सबको जोड़े रखे हैं, और हमें मौका मिला पुराने अपने सीनियर से मिलने का और अपने थॉट शेयर करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा होता रहना चाहिए, खुशी मिलती है। भानु सर, गोवा आना तो जरूर मिलना। बिल्कुल जी, आप गोवा जी आएंगे, मिलेंगे। गोवा आइएगा तो जरूर मिलिएगा। राजीव सर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक मिनट। आपने बहुत हमारी बैंगलोर में अभी सक्सेना साहब हैं आजकल, राइट? हाँ सर। हाँ, तो सक्सेना साहब, मैं आपसे करूंगा कांटेक्ट। नंबर तो इसका मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप में, हमारा नंबर सबका बिल्कुल। नहीं तो मैं दे देता हूँ नंबर 98450। जस्ट होल्ड ऑन, मैं पेन ले लूं। हाँ बोलो। 98450 39297 297। मेरा नंबर नोट करना तो कर सकते हो। हाँ जी 98। हाँ जी बताइए। 9899 0 5240 5240। पूरा नाम क्या है सर आपका? BM सक्सेना। अच्छा सर, थैंक यू जी। जी प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रकाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी जूनियर्स हैं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड गुड लक। पोस्ट कोरोना एवरीथिंग विल बी गुड, लेट अस बी पॉजिटिव। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वीर भानु, we will connect and it's a great session, great interaction with all of us, and it's nice to meet all juniors, seniors.
So that's all from. Let us conclude now because we have already crossed 2 hours. समय का पता ही नहीं चला। हाँ, बट समय तो है, किसी किसी को तो समय पे कहीं न कहीं और होना होगा ना। जी जी, नहीं काफी अच्छा लगा सर। पहला नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भानु सर, ये फर्स्ट सेशन था जो आपने शुरू किया हूँ मैं, और काफी अच्छा लगा सर, काफी। ओ अच्छा, ये प्रयास का पहला सेशन रहा हो। बहुत बहुत यस सर। चलिए, नहीं, कामयाब हो गए जी आज तो। यस बढ़िया रहा। धन्यवाद। जी जी जी। अच्छा जी, ओके सर जी इजाजत लेते हैं फिर सबसे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्या हाल है? बढ़िया सर। उपाध्याय जी तो ऊपर हैं, कहाँ भाग गए हो? निकल गए? नहीं, है। उपाध्याय जी ऊपर हैं और ये मेहता सर हैं अभी। फोन नहीं उठाते हो तुम? फोन इसलिए नहीं उठा, उस दिन गलती लग गई। धंधे में अकेला बैठा हूँ, बहुत परेशान हूँ। कैसा फोन टेबल पे था, मैं अंदर। कैसा धंधा करते हो जी? रवि देख रहे हो? विनय सर कुछ बता दीजिए इकरार के विषय में, क्या है, कैसा धंधा करते हैं? वही देखो ना, क्या राजीव कुमार जी हैं, राजीव कुमार उपाध्याय जी, थोड़ा उनसे मैं बात कर लूँ, अभी हैं लाइन पे। राजीव सर सुन पा रहे हैं? राजीव कुमार उपाध्याय ये मिश्रा सर के साथ काम कर रहे हैं सिंडिकेट में। आपका जूनियर राजीव, फिर भी भगवान जो है, ईश्वर का वास किसके मुंह पे कब रखता है पता नहीं है, तो इसलिए सर्व तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, उसका तो हमेशा श्रेष्ठ के हिसाब से माना जाता है कि श्रेष्ठता हर किसी में है। मैं आपको इसलिए याद कर रहा था। लाइव चले गए क्या राजीव? चले गए राजीव सर। इकरार और बीएम सर, ईद मुबारक वेलेटेड। थैंक यू। आज भी चल रहा है, 3 दिन रहता है ये वाला। मुझे मालूम है बांटा जाता है, मैं लीडर रहा हूँ ना 6 साल। जी। लॉकडाउन में बंगलोर में फंसे हुए हैं, कब लौट रहे हैं? तो बांटा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अरे सर, ये सब दोस्त यार तो वीराने हुए पड़े हैं, यही तो हैं हमारे दोस्त, हमारी दुनिया ही तो यही है। जो एक गंगा के उस पार बैठा, जमुना के उस पार बैठा।